Hello and welcome back to my YouTube channel. My dear students, today we are going to discuss a new topic from the same chapter that is known as properties and characteristics of enzymes. So let's start. So the first property of enzyme that you can see, they are proteinaceous except ribozymes and ribonuclease P. As we have discussed, majorly the enzymes are proteinaceous in nature. But as we have discussed in the history of enzyme that ribozymes and the ribonuclease P are the RNA molecules. That is why they are not proteinaceous in nature except these two enzymes. All the enzymes can be considered as proteinaceous. Second property, that enzymes have 3D structure or you can say tertiary structure of the protein. यानी कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि एंजाइम्स जो होते हैं उनके पास प्रोटीन का टर्शरी स्ट्रक्चर पाया जाता है. If you remembered, we learned about the tertiary structure of the protein, that the tertiary structure of the protein has hollow woolen ball-like appearance. And within this hollow woolen ball, there are some crevices or curvatures where a specific sequence of amino acid is found that forms the active site. As you can see in this picture, there is tertiary structure of the protein has a hollow woolen ball-like appearance and due to which pockets and crevices are formed that are known as active sites. And when we were discussing tertiary structure of the protein, I taught you that all the enzymes except ribonuclease P and ribozymes can be considered functional in tertiary structure of the protein arrangement. And actually, tertiary structure of the protein is the conformation where all the enzymes and proteins can be considered functional. Because here are some active sites which are helping in binding of the substrate and catalyzation of the reaction. That's why यहाँ पर लिखा है कि टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन जो होता है उसमें सारे के सारे एंजाइम्स के पास एक्सेसिव फोल्डिंग की वजह से स्पेसिफिक एमाइनो एसिड का सीक्वेंस एक्टिव साइट बना रहा होता है, जिस एक्टिव साइट पर आकर आपका सबस्ट्रेट बाइंड होगा और तब कहीं जाकर एंजाइम उस सबस्ट्रेट को रिएक्शन के दौरान कैटालाइज करवाने में हेल्प करेगा. थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ एंजाइम दैट दे आर हाईली एफिशिएंट, ये बहुत ज्यादा एफिशिएंट और रैपिड माने जाते हैं. रिमेंबर इन यस्टरडे लेक्चर I taught you the fastest enzyme of the living world that is known as carbonic anhydrase. As we have discussed that in the respiration chapter when we learned about the transportation of carbon dioxide inside the red blood cell, सो कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्टेशन के लिए हमें रेड ब्लड सेल के अंदर सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड और H2O को मिलाकर क्या बनाना पड़ता है, कार्बोनिक एसिड. और इस रिएक्शन को जल्दी कैटालाइज करवाने के लिए आरबीसीज के अंदर एक एंजाइम पाया जाता है दैट इज कार्बोनिक एनहाइड्रेज विच कैन बी कंसीडर्ड एज फास्टेस्ट एंजाइम ऑफ द अर्थ. ऐसा इसीलिए है क्योंकि एक मिनट में ये 36 मिलियन कार्बोनिक एसिड के मॉलिक्यूल बना सकता है और एक सेकंड में ये 6 लाख मॉलिक्यूल ऑफ कार्बोनिक एसिड बना सकता है. दैट इज व्हाई दे आर हाईली एफिशिएंट एंड रैपिड. नाउ द फोर्थ प्रॉपर्टी दैट दे रिमेन अनयूज्ड एट द एंड ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के एंड में एंजाइम हमेशा अनयूज्ड रह जाते हैं, ऐसा लगता है कि उनका यूज ही नहीं हुआ हो. और इसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको पहले भी दे चुका हूं. आपने अपनी छोटी क्लासेस में भी ये चीज़ें पढ़ी होगी कि अगर किसी केमिकल रिएक्शन को करवाने के लिए हम उसमें इनिशियली 5 ग्राम ऑफ कैटलिस्ट डालते हैं, सो आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन एट द एंड आपके पास दोबारा से 5 ग्राम ऑफ कैटलिस्ट ही बचता है. जिस तरीके से इस रिएक्शन में कैटलिस्ट बिल्कुल यूज नहीं हुआ, इस तरीके से आपके एंजाइम भी किसी भी रिएक्शन के दौरान कंप्लीटली यूज नहीं होते हैं. हमने कल इंट्रोडक्शन में भी ये चीज पढ़ी थी. दे हैव ओनली फंक्शन to increase the rate and velocity of the chemical reaction, but in the whole process they will never undergo any changes and reducement. That's why they remain unused at the end of chemical reaction.
Now, next property, as we have discussed, that enzyme can increase the rate and velocity of the chemical reaction, but how? So, enzymes speed up the reaction by lowering the activation energy of the reaction. यानी कि enzyme किसी भी reaction के rate को increase करने के लिए उस reaction की activation energy को lower कर देते हैं. Now, what is activation energy? वैसे तो हम इसे डिटेल में ग्राफ के साथ डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पर मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि अगर हम यहाँ पर एक केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल यूज करके समझते हैं। इमेजिन कीजिए कि आपके पास दो सबस्ट्रेट हैं ए एंड बी, जिन्हें आपको केमिकल रिएक्शन के बाद प्रोडक्ट सी और डी में कन्वर्ट करवाना है। तो जब आपके सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बन रहा होगा तो ऐसा कभी नहीं होता है कि प्रोडक्ट सबस्ट्रेट से बिल्कुल ही अलग हो, क्योंकि प्रोडक्ट सबस्ट्रेट से ही बना है। यानी कि सबस्ट्रेट को तोड़ मरोड़ कर, आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि सबस्ट्रेट को तोड़ मरोड़ कर, यानी कि पुराने बॉन्ड तोड़कर नए बॉन्ड बनाकर ही प्रोडक्ट बनता है। तो जब पुराने बॉन्ड टूट रहे होते हैं और नए बॉन्ड बन रहे होते हैं तो इन प्रोसेस के लिए एक एनर्जी की जरूरत होती है, जिस एनर्जी को एक्टिवेशन एनर्जी या फ्री एनर्जी कहा जाता है, जिसे आप ई एक्ट से डिनोट कर सकते हो। सो व्हाट इज एक्टिवेशन एनर्जी एक्चुअली? Activation energy is the minimum amount of energy required for a chemical reaction to begin. किसी भी chemical reaction को start करने के लिए जो minimum amount of energy की ज़रूरत होती है उसे हम activation energy कह देते हैं। अब एक चीज आपको और ध्यान रखनी है कि जब सबस्ट्रेट के पुराने बॉन्ड टूट रहे होते हैं और सबस्ट्रेट के बीच नए बॉन्ड बन रहे होते हैं तो इन पुराने बॉन्ड टूटने और नए बॉन्ड बनने के बीच में एक स्टेट आती है जिसे हम ट्रांजिशन स्टेट या टेम्पररी स्टेट कहते हैं, जो कि अनयूजुअल और अनस्टेबल स्टेट होती है। As you can see, when the new product start forming, जब नए प्रोडक्ट बनाने होते हैं तो पुराने बॉन्ड्स को तोड़ना होता है और नए बॉन्ड बनाने जरूरी होते हैं। लेकिन पुराने बॉन्ड तोड़ते वक्त और नए बॉन्ड बनाने के बीच की एक इंटरमीडिएट स्टेट होती है, जिसके बाद नए बॉन्ड बनने स्टार्ट होते हैं, उन्हें आप ट्रांजिशन स्टेट कहते हो। तो सबस्ट्रेट को ट्रांजिशन स्टेट तक पहुंचाने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए होती है उस एनर्जी को भी आप एक्टिवेशन एनर्जी कह सकते हो। सो द एक्टिवेशन एनर्जी इज द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द सबस्ट्रेट एंड ट्रांजिशन इंटरमीडिएट स्टेट। सो एक्टिवेशन एनर्जी वो एनर्जी भी होती है जो आपके सबस्ट्रेट और ट्रांजिशन स्टेट के बीच के एनर्जी डिफरेंस को कहा जाता है। इसे हम डिटेल में ग्राफ के साथ डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर। Next property, that they are highly specific in their action, that is each enzyme can catalyze only one kind of substrate. ये मैंने आपको कल भी बताया था कि आपके जो एंजाइम होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक माने जाते हैं, क्योंकि उनके पास एक यूनिक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है जहां पर एक यूनिक एक्टिव साइट पाई जाती है जो कि एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट के साथ ही बाइंड कर सकती है। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन के लिए सिर्फ एमाइलेज एंजाइम ही चाहिए, लिपिड के डाइजेशन के लिए लाइपेज एंजाइम ही चाहिए और प्रोटीन के डाइजेशन के लिए प्रोटीएज एंजाइम ही चाहिए होते हैं। इट मीन्स दे आर हाईली स्पेसिफिक फॉर देयर सबस्ट्रेट। Seventh property, that small amount of enzymes can accelerate the chemical reaction. यानी कि अगर आप किसी केमिकल रिएक्शन में स्मॉल अमाउंट में भी एंजाइम को ऐड करते हो तो वो केमिकल रिएक्शन के रेट को इंक्रीज कर सकता है, बिकॉज एंजाइम नेवर पार्टिसिपेट एनी टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। क्योंकि एंजाइम कभी भी किसी केमिकल रिएक्शन में खुद पार्टिसिपेट नहीं करता, इट विल ओनली ओन इंक्रीजेस और एक्सेलरेट द रेट ऑफ रिएक्शन। I hope I am clear up to this. Now, eighth property, that enzymes are sensitive to the change in pH, temperature and substrate concentration. This is the most important point. आपके जो एंजाइम्स होते हैं ये pH में होने वाले किसी भी चेंज या टेम्परेचर या सबस्ट्रेट कंसेंट्रेशन में होने वाले किसी भी चेंज से डरते हैं। यानी कि डरने का मतलब अपना काम रोक देते हैं। I can explain you this line with the help of some examples. First of all, pH में चेंज को समझते हैं। देखिए, as we learned in the digestion chapter, that जो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन है वो माउथ से स्टार्ट होता है और माउथ में सलाइवरी अमाइलेज की प्रेजेंस में स्टार्च का डाइजेशन स्टार्ट होता है। लेकिन जब वो फूड आपके स्टमक में एंटर कर जाता है तो उस फूड में सलाइवा भी मिक्स है, यानी कि सलाइवरी अमाइलेज प्रेजेंट है।
लेकिन तब भी स्टमक में सिलिवरी एमाइलेज की प्रेजेंस में स्टार्च का डाइजेशन नहीं हो पाता। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि माउथ में सिलिवरी एमाइलेज के अकॉर्डिंग एनवायरनमेंट मेंटेन है। सिलिवरी एमाइलेज जिस पीएच पर काम करता है दैट इज 6.8 स्लाइटली एसिडिक, वो केवल माउथ में पाया जाता है। लेकिन जैसे ही ये फूड जो आपके सलाइवा के साथ मिक्स हो गया है वो आपके स्टमक में पहुंचता है, तो स्टमक का नेचर होता है हाईली एसिडिक, जहां पर आपका सिलिवरी एमाइलेज नाम का एंजाइम काम करना बंद कर देता है, क्योंकि इसे स्लाइटली एसिडिक मीडियम चाहिए होता है, ना कि हाईली एसिडिक मीडियम। यहां से ये पता चलता है दैट दे आर हाईली सेंसिटिव टू द चेंज इन द पीएच। अब टेम्परेचर समझते हैं। तो आपने कभी ना कभी अपनी लाइफ में इम्यूनिटी वाले चैप्टर में ये लाइन जरूर सुनी होगी दैट फीवर इज द नेसेसरी ईविल, यानी कि फीवर नेसेसरी भी है और कई बार ये ईविल भी बन जाता है। कैसे? जब भी आपकी बॉडी में कोई फॉरेन एजेंट एंटर करता है तो आपका इम्यून सिस्टम उस फॉरेन एजेंट को किल करना चाहता है। अब अगर वो फॉरेन एजेंट हमारी बॉडी में एंटर करने के बाद ग्रोथ कर रहा है, इन्फेक्शन कॉज कर रहा है, यानी कि वो हमारे बॉडी टेम्परेचर पर इजीली सरवाइव कर सकता है। और ये चीज हमारा इम्यून सिस्टम बहुत अच्छे तरीके से जानता है। इसीलिए उस फॉरेन सब्सटेंस को किल करने के लिए हमारा इम्यून सिस्टम उसकी कमजोरी जानता है कि अगर बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया जाए तो ये किल हो सकते हैं। हाँ, मानते हैं किसी का नुकसान नहीं करना चाहिए, लेकिन सामने वाला जब आपका नुकसान कर रहा हो तो आपको उसकी कमजोरी पकड़नी भी चाहिए और उसका फायदा भी उठाना चाहिए। तो इस वजह से आपका इम्यून सिस्टम किसी भी फॉरेन बॉडी के एंटर करने के बाद आपके बॉडी के टेम्परेचर को इंक्रीज कर देता है, जिसकी वजह से वो जो आपका फॉरेन बॉडी आपकी बॉडी में एंटर करा था या फॉरेन सब्सटेंस आपकी बॉडी में एंटर करा था, अब उसके अकॉर्डिंग जो टेम्परेचर था वो कंप्लीटली चेंज हो चुका है और उस टेम्परेचर में वो सरवाइव नहीं कर सकता। इस वजह से वो फॉरेन बॉडी सब्सटेंस किल हो जाते हैं। अब ये नेसेसरी तो था, लेकिन इसकी वजह से कुछ इविल इफेक्ट्स भी जनरेट हुए। कौन से इविल इफेक्ट्स? देखिए, लड़ाई में हार या जीत किसी की भी हो, लेकिन नुकसान दोनों का होता है। जब आपके इम्यून सिस्टम ने उस फॉरेन एजेंट को किल करने के लिए बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज किया, उस दौरान आपकी बॉडी के प्रोटीन्स और एंजाइम भी डिग्रेड होने लगे, क्योंकि वो आपकी बॉडी के नॉर्मल टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस पर ही अपना नॉर्मल स्ट्रक्चरल फंक्शन मेंटेन करके रख सकते हैं। एक्चुअल में वो फॉरेन सब्सटेंस भी इसीलिए किल हो पाया क्योंकि टेम्परेचर हाई होने की वजह से उसकी बॉडी के प्रोटीन और एंजाइम भी डिग्रेड होने लगे, जिसकी वजह से अल्टीमेटली उसकी डेथ हो गई। इसीलिए कई बार एंजाइम के टेम्परेचर सेंसिटिविटी की वजह से पेशेंट की फीवर के दौरान भी डेथ हो सकती है। सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम फैक्टर्स अफेक्टिंग द एंजाइम एक्टिविटी को डिस्कस करेंगे। नाइन्थ प्रॉपर्टी दैट द टर्नओवर नंबर इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द प्रोडक्ट पर मिनट बाय वन एंजाइम मॉलिक्यूल। टर्नओवर नंबर क्या होता है? यानी कि एक एंजाइम का मॉलिक्यूल एक मिनट में कितने नंबर ऑफ सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है, दैट इज द टर्नओवर नंबर। एंड इट हेल्प्स इन असेसमेंट ऑफ एंजाइम एफिशिएंसी। वैसे तो एंजाइम एफिशिएंसी को चेक करने के लिए एक और चीज होती है जिसे माइकलिस मेंटेन कांस्टेंट कहते हैं, लेकिन इसे हम बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल आपको टर्नओवर नंबर याद रखना है। 10th प्रॉपर्टी दैट दे आर थर्मोलेबाइल, ये हम कल भी पढ़ चुके हैं कि ये हाई टेम्परेचर से डरते हैं और आज भी हमने ये चीज डिस्कस कर ली है। एंड दे आर वाटर सॉल्युबल, यानी कि वाटर में इजीली डिसॉल्व हो सकते हैं। 11 पॉइंट, दे कैन बी प्रेसिपिटेटेड बाय द प्रोटीन प्रेसिपिटेटिंग रीजेंट, यानी कि इन एंजाइम्स को आप प्रोटीन प्रेसिपिटेटिंग रीजेंट से प्रेसिपिटेट कर सकते हो, जैसे कि अमोनियम सल्फेट और ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। क्योंकि मोस्ट ऑफ द एंजाइम प्रोटीन नेचर के हैं, तो जिन चीजों से प्रोटीन प्रेसिपिटेट हो सकता है उन्हीं चीजों से आपके एंजाइम भी प्रेसिपिटेट हो सकते हैं। Now let's discuss what are coenzymes. So protein part of the enzyme on its own not always adequate to bring about catalytical activity. सबसे पहले आपको एक चीज ध्यान रखनी है, क्योंकि एंजाइम प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं, तो हर एक एंजाइम का जो प्रोटीनेशियस पार्ट होता है वो हमेशा कैटालिटिकल एक्टिविटी को अकेले परफॉर्म नहीं कर सकता।
Many enzymes requires certain non-protein small additional factors. बहुत सारे ऐसे एंजाइम्स होते हैं जिन्हें अपनी कैटालिटिकल एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए कुछ नॉन प्रोटीनिशियस स्मॉल एडिशनल फैक्टर्स की ज़रूरत होती है, जिन्हें कलेक्टिवली आप कोफैक्टर कह देते हो, जो कि एंजाइम की कैटालिसिस को इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं। नाउ कोफैक्टर दो तरीके के हो सकते हैं, यानी कि कोफैक्टर जो कि एक नॉन प्रोटीनिशियस मॉलिक्यूल है, ये दो तरीके का हो सकता है, एक ऑर्गेनिक नेचर का, एक इनऑर्गेनिक नेचर का। अगर आपका कोफैक्टर ऑर्गेनिक नेचर का है तो आप उसे कोएंजाइम कह देते हो, अगर कोफैक्टर इनऑर्गेनिक नेचर का है तो आप उसे एक्टिवेटर कह देते हो। नाउ लेट्स डिस्कस व्हाट आर कोएंजाइम। दीज आर ऑर्गेनिक नेचर्ड कोफैक्टर्स। सिंपली यू कैन से, क्योंकि कोएंजाइम भी एक तरीके का कोफैक्टर है तो ऑब्वियस है कोएंजाइम भी नॉन प्रोटीन ही होगा। दैट इज व्हाई द नॉन प्रोटीन ऑर्गेनिक लो मॉलिक्यूलर वेट एंड डायलाइजेबल सब्सटेंसेस, यानी कि कोएंजाइम नॉन प्रोटीनिशियस नेचर के होते हैं, ऑर्गेनिक होते हैं और इनका मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज्यादा लो होता है और ये डायलाइजेबल हैं। डायलाइजेबल सब्सटेंस मींस ये वो सब्सटेंसेस हैं या वो कोफैक्टर हैं जिन्हें डायलाइसिस के थ्रू इजीली सेपरेट किया जा सकता है। एंड दीज सब्सटेंसेस एसोसिएटेड विद द एंजाइम फंक्शंस नोन एज कोएंजाइम। और ये जो आपके नॉन प्रोटीनेशियस ऑर्गेनिक लो मॉलिक्यूलर वेट वाले डायलाइजेबल सब्सटेंस है, ये हमेशा एंजाइम के फंक्शन के साथ एसोसिएटेड होते हैं और इन्हें कोएंजाइम कह दिया जाता है। एंजाइम फंक्शन के साथ ये इसीलिए एसोसिएटेड होते हैं क्योंकि एंजाइम की कैटालिटिकल एक्टिविटी को ये एनहांस करने में मदद करते हैं। जबकि द टर्म एक्टिवेटर इज रेफर टू द इनऑर्गेनिक कोफैक्टर लाइक कैल्शियम, मैग्नीशियम, मैग्नीज एटसेट्रा नेसेसरी टू एनहांस एंजाइम एक्टिविटी। जबकि एक्टिवेटर टर्म यूज की जाती है उन इनऑर्गेनिक कोफैक्टर्स के लिए जो कि एंजाइम की कैटालिटिकल एक्टिविटी को एनहांस करने में मदद करते हैं। दे आर इनऑर्गेनिक कोफैक्टर्स लाइक कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड मैग्नीज। द फंक्शनल एंजाइम इज रेफर्ड एज होलो एंजाइम। एक जो फंक्शनल एंजाइम होता है जो कंप्लीटली अपने फंक्शंस को परफॉर्म कर पा रहा है, उसे आप होलो एंजाइम कहते हो। इस होलो एंजाइम के दो पार्ट होते हैं, एक प्रोटीन पार्ट होता है और एक नॉन प्रोटीनिशियस पार्ट होता है। प्रोटीन पार्ट को एपो एंजाइम कहा जाता है और नॉन प्रोटीनिशियस पार्ट आपके कोफैक्टर हो सकते हैं जैसे कि कोएंजाइम या एक्टिवेटर्स। अगर एपो एंजाइम की बात करी जाए तो ये आपके होलो एंजाइम में प्रेजेंट एक प्रोटीनेशियस पार्ट माना जाता है and it can be defined as an inactive protein that combines with coenzyme to form an active enzyme। कि एपो एंजाइम ऐसे इनएक्टिव प्रोटीनेशियस पार्ट होते हैं होलो एंजाइम के जो कि को एंजाइम के साथ कंबाइन होकर एक एक्टिव एंजाइम बनाने में हेल्प करते हैं। The term prosthetic group is used when a non-protein moiety is tightly or permanently bound to the enzyme। कोई नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट किसी एंजाइम के साथ परमानेंटली और टाइटली बाउंड हो जाए तो आप उसे प्रोस्थेटिक ग्रुप कहते हो, विच इज नॉट इजिली सेपरेबल बाय डायलाइसिस, जिसे डायलाइसिस के थ्रू भी सेपरेट नहीं किया जा सकता। आपको यहाँ पर एक चीज ध्यान रखनी है, एपो एंजाइम अगर किसी प्रोस्थेटिक ग्रुप से बाइंड हुआ है तो वो कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू टाइटली बाउंड होता है, जबकि अगर कोई एपो एंजाइम किसी को एंजाइम या ऑर्गेनिक कोफैक्टर के साथ बाइंड हुआ है तो वो नॉन कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू होता है। और अगर कोई एपो एंजाइम किसी इनऑर्गेनिक कोफैक्टर यानी कि एक्टिवेटर के साथ बाइंड हुआ है तो वो किसी नॉन कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू ही बाइंड होता है। हमेशा प्रोस्थेटिक ग्रुप के साथ वो टाइटली बाउंड इसीलिए होता है क्योंकि यहाँ पर वो कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू बाइंड होता है, जबकि कोएंजाइम और कोफैक्टर जैसे कि इनऑर्गेनिक एक्टिवेटर्स के साथ वो हमेशा नॉन कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू टेम्पररी बाइंड होता है। अब यहाँ पर आपको सिर्फ 3 टर्म्स और याद करनी है। सबसे पहला व्हाट आर मोनोमरिक एंजाइम्स। मोनो वर्ड रेफर्स टू वन, मरिक वर्ड रेफर्स टू द यूनिट, यानी कि ऐसे एंजाइम दैट कंटेन्स और पजेस वन पॉलीपेप्टाइड चेन इन देयर स्ट्रक्चर, यानी कि ये ऐसे एंजाइम होते हैं जिनके स्ट्रक्चर में केवल एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन यानी कि एक ही प्रोटीन चेन पाई जाती है, फॉर एग्जाम्पल राइबोन्यूक्लियेज। जबकि ओलिगोमरिक एंजाइम्स, ओलिगो मीन्स फ्यू, मरिक मीन्स यूनिट, यानी कि दीज आर द एंजाइम्स विच कंटेन्स और पजेस
more than one polypeptide chains in their structure. Oligomeric enzymes ऐसे एंजाइम होते हैं जो अपने स्ट्रक्चर में एक या एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन को कंटेन करते हैं. एग्जाम्पल के लिए लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज और यू कैन से हेक्सोकाइनेज. कोफैक्टर के बारे में आपको एक चीज ध्यान रखनी है. कोफैक्टर दो ही तरीके के हो सकते हैं, या तो ऑर्गेनिक या तो इनऑर्गेनिक. ऑर्गेनिक है तो कोएंजाइम होंगे, इनऑर्गेनिक है तो मेटल आयंस या एक्टिवेटर होंगे. आई होप आपको एंजाइम की कैरेक्टरिस्टिक और प्रॉपर्टीज एज वेल एज कोएंजाइम समझ आया हो. In the next lecture, we will discuss the classification of the enzyme according to IUPAC. अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें. अपने दोस्तों के साथ शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें और सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे चैनल पर मिलने वाली ये इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे. Thank you so much. See you in the next lecture. Till then, keep learning, keep exploring, and always remember, biochemistry is the most interesting subject.